आई स्टार्ट क्राइंग। मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे होते हैं। मेरा तो कोई कैंप जाने का सीन ही नहीं था फिलहाल 1 महीने। आई रियलाइज मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है। सर जल्दी हो जाएगा ना? सर मुझे 2 दिन में चाहिए सर। Hello everyone, Radhe Radhe and welcome back to my channel. I am Bhavini Bahuguna and this will be my first long form video which is a sit down video. अभी तक मैंने जितने videos upload करे हैं they are vlogs and this is a very different kind of a video idea that I had. So I've also mentioned before that I was in NCC in my graduation. It is also written in my channel's description and bio. And in my NCC, I have been a part of 2 very prestigious camps, that is the Republic Day Camp and the Youth Exchange Program. So for the Youth Exchange Program, I was called to Russia, St. Petersburg, and this video will be all about the experience that I had from the list coming out to how I got the preps done and how we went over to Russia and how was the trip. Everything will be covered in this video or basically in this series because maybe it might be a long one. तो मुझे ज़्यादा videos लग सकते हैं to complete it, maybe 2 or 3 parts. So let's get started with the video. So most of the people watching this video initially might be from NCC. But in case who are not from NCC, I'll give you a brief description of what YEP is, which might be beneficial for those also जिनको इनके बारे में जानना है. And for those as well who want to have a second hand experience of it, who want to know कि कैसे होता है, क्या होता है and everything. And also for those newly enrolled NCC cadets who are not very much aware कि क्या camps होते हैं and everything, I'll tell you about YP for a brief description. Basically जैसे cadet youth ambassadors होते हैं, the cadets who are called for YP, who go to YP. So you're on behalf of the government of India, as NCC cadets, you visit another country as the delegation of India. Yeah. So you kind of visit that country, meet the people there or the authorities there because it is a government program. So you're also linked, you're also linked with the government. For example, as I went to Russia, there was a Suvorov military school that is somewhat like a Sainik school of India. तो उसी की तरीके का वहाँ पे एक स्कूल था एंड वी वर इन टच विद देम. बेसिकली यू कैन से वी वर इन पार्टनरशिप विद देम. दैट वाज अ गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक स्कूल एंड वी वेंट आउट विद द कैडेट्स देयर एंड द टीचर्स एंड एवरीथिंग. तो इसी तरीके से होता है एंड यू बेसिकली एक्सचेंज ideas, you talk to them, you have food with them, you visit places with them, they tell you about your country, you tell them about your own country. So that is how YP goes basically, and you go on the expense of the government. You are accompanied by officers who are serving in NCC postings, and I think that is about it. And for NCC, different cadets are selected from different directorates. For example, in our delegation, that is Russia 1 to St. Petersburg, we were 10 cadets, all from different states or different directorates rather, I would say, of NCC, and we were accompanied by 2 officers, 1 male and 1 female. This varies from the strength of your, like the cadets who are going visiting. If there are 4 or 5 cadets, maybe only 1 officer goes, and usually the officer is of lieutenant colonel or a colonel rank, and the female officer that accompanies is a WTLO or a whole time lady officer in NCC, and she is of a major rank. तो शुरू से शुरू करते हैं. YP की कहानी कुछ ऐसी है कि we need to rewind back to RDC days. तो RDC में ही YP कॉम्पिटिशन्स होते हैं इन द रिपब्लिक डे कैंप एंड अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स, ड्रिल, रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन. एंड थैंकफुली मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आई कुड स्पीक गुड पॉइंट्स इन ग्रुप डिस्कशन और मैंने अच्छे से पार्ट लिया. बट उस टाइम पे भी मेरी मेंटालिटी ऐसी थी कि आई वॉज नॉट लाइक, मुझे YP के इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता था इतना ज़्यादा बिकॉज I was not in touch with any immediate person who went to YP and मैं उससे first hand information extract कर सकूँ कि कैसे होता है, क्या होता है, what is the process, what is the benefits, etc. तो मैं तब यही सोचती थी कि भाई ठीक है, देखते हैं हो जाएगा नहीं होगा. कोई मैनिफेस्टेशन नहीं था. RDC में बात आई गई होगी, आई पार्टिसिपेटेड एंड देन मई के मंथ से आई थिंक डेलीगेशन आना स्टार्ट हुई एंड मेरे ही साथ के बच्चे जिनके साथ मैंने RDC करा था, मैंने सॉ देयर नेम्स कमिंग अप एंड देन देयर फोटोज विजिटिंग डिफरेंट कंट्रीज. दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लाइक इसका एक्सपोजर कितना अच्छा है एंड मुझे भी चाहिए. नाउ हियर इज व्हेन द टी स्टार्ट्स. मैं
मैनिफेस्ट कर रही थी कि व्हाई नॉट। एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ गया कि मैं सोचने लगी कि यार दूर की कंट्री हटाओ, ना मिले यूएस और एनीथिंग, जस्ट गेट मी अ वाइफ, कोई भी कंट्री मिल जाए। फिर एक दिन आती है ऑन द 28th of August, माई 4th सेमेस्टर एग्जाम्स आर गोइंग ऑन। डेलीगेशन आती है रशिया की, रशिया 1, रशिया की 2 डेलीगेशन होती है, रशिया 1 टू सेंट पीटर्सबर्ग एंड रशिया 2 टू मॉस्को। रशिया 1 में यूपी से कोई भी कैडेट नहीं होता है, मेरा नाम होता है बट इन द रिजर्व लिस्ट, आई वाज द फर्स्ट इन द रिजर्व लिस्ट। तो मैं उसी में खुश हो जाती हूँ, आई स्टार्ट क्राइंग, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे होते हैं, मैं कूद कूद कर जाती हूँ मम्मी के पास, मम्मी मेरा नाम आ गया, इट्स इन रिजर्व लिस्ट। अब इसका रीज़न मैं बताती हूँ, आई विल गेट टू इट। रीज़न ये था कि आई सॉ अ पैटर्न कि एक लिस्ट में अगर किसी कैडेट का नाम रिजर्व में है तो अगली लिस्ट में, अगले डेलीगेशन में उसका नाम कंफर्म लिस्ट में हो जाता था। तो आई वॉज रेस्ट अश्योर्ड कि रिजर्व में मेरा नाम आ गया है, अब अगली जो डेलीगेशन आएगी उसमें तो मैं जा ही रही हूँ। तो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा एंड मैंने ये इन्फॉर्मेशन अपनी एएनओ मैम और सीओ सर को भी दी। माय एएनओ मैम मेजर किरणलता डंगवाल, व्हेन आई शेयर्ड दिस विद हर, तो पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर शी सेड कि अरे उम्मीद रखो इसी में हो जाएगा, क्या पता। तो मैंने, मतलब ये बात बहुत ऐसे मैम ने भी मेरी खुशी के लिए बोली एंड मैंने भी मैम से ऐसे बोला कि अरे मैम वाईपी कोई थोड़ी छोड़ता है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट आई एम रियली हैप्पी कि एटलीस्ट यू नो मेरा नाम रिजर्व लिस्ट में है एंड आई विल गेट द next delegation, any delegation, I'll be able to go to YP and this in itself is a huge achievement। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई। अब मैम ने भी ऐसे बोल दिया, मैंने भी ऐसे बोल दिया, बात हो चुकी, दोनों इसको भूल गए। 2 दिन बाद on the 30th of August मेरे पास कॉल आता है फ्रॉम द एएनओ मैम, अमिता मैम, जो मेरे साथ आरडीसी में थी यूपी डायरेक्टरेट से, एंड आई थॉट out of nowhere she's calling, कुछ urgent होगा। I picked her call up. She says, भावनी बेटा, आगरा की मैम है, मेजर मैम है, she wants your number and I won't be revealing here the names of any officers who accompanied us for security reasons because they're serving in the defense ministry, so I won't be naming them, but yeah, उन्होंने बोला उनको तुम्हारा नंबर चाहिए एंड तुम्हारा नाम शायद रशिया की लिस्ट में है। मैंने बोला मैम लिस्ट तो मैंने भी देखी थी, मेरा रिजर्व में है नाम। तो मैम कह रही है हाँ बेटा, लेकिन शायद एक लड़की ने ड्रॉप कर दिया तो तुम्हारा नाम शिफ्ट हो गया है कंफर्म लिस्ट में। उस मोमेंट में माई हार्ट संक इन, आई कुड नॉट डाइजेस्ट द इन्फॉर्मेशन। बेसिकली मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है और ये कैसे हो सकता है। फिर एएनओ मैम की बात मेरे दिमाग में घूमने लगी, मेरी एएनओ मैम किरणलता डंगवाल मैम। बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन थी एंड तुम भाई समझो मैं कैसी सिचुएशन में थी। मेरा एक फ्रेंड है सौरभ, वो उसी दिन पैरा बेसिक कैंप के लिए लीव कर रहा था। तो मैंने अपनी जो आरडीसी की किटिंग में मेरी अटैची थी सफारी की सूटकेस दैट आई गॉट, मैंने सौरभ को दे रखा था बिकॉज मेरा तो कोई कैंप जाने का सीन ही नहीं था फिलहाल 1 महीने, उसका पैरा बेसिक कैंप था 1 महीने का। तो ही टुक माई सूटकेस फॉर दैट पर्पस एंड उसी दिन ही वॉज लीविंग एंड एक ट्रेडिशन था हमारे बटालियन में स्टिल देयर कि कोई नेशनल कैंप या किसी बड़े कैंप के लिए जाता है तो यू गो टू ड्रॉप देम और रिसीव देम वट एवर इज कन्वीनियंट। तो मैं और हमारा एक और अंडर ऑफिसर ऋषभ पांडे वी वर गोइंग। तो मैं निकलने ही वाली थी एंड उसके आधे घंटे पहले मेरे को ये कॉल आती है। अब भाई वो बंदा पैक कर चुका है अटैची एंड ही इज लीविंग फॉर द कैंप, ही इज लेफ्ट फॉर द स्टेशन। अब मेरे को भी जाना है एंड आई हैड टू लीव आई थिंक ऑन द 13th of September। मेरा फर्स्ट को एग्ज़ाम था, माई लास्ट एग्ज़ाम ऑफ द सेमेस्टर 4th मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। तो एक साथ इतनी चीज़ें थी मेरे सर पे और मसाला तो अभी आने वाला है। ये सब तो हुआ, मैं सौरभ को ड्रॉप करके आई, मैंने सबको अच्छी न्यूज़ दी, सब बहुत खुश हुए। अभी मैंने बोला चलो अभी किसी को बताना मत, लेट एवरीथिंग गेट फाइनलाइज, मैं डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग होने दो। मुझे ग्रुप वगैरह में ऐड किया गया एंड सबसे बात हुई जिनके साथ में जा रही थी। वी वर ग्रुप ऑफ 10 कैडेट्स, 5 boys and 5 girls from different directorates all over India. Suddenly, you know, I realized मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है। I had realized it, but एक वो लगता है कि यार पासपोर्ट चाहिए और पासपोर्ट मांगा जा रहा था ताकि वीज़ा के लिए जल्दी अप्लाई किया जा सके। मैं क्या कर सकती थी, पता नहीं क्या मुहूर्त थी यार, मेरे को समझ नहीं आता। 1 तारीख को सैटरडे, 1 तारीख को फ्राइडे था, 2 को सैटरडे था, 3 को संडे था। सैटरडे संडे पासपोर्ट सेवा ऑफिस बंद रहता है। 1 को मेरा एग्जाम था, आई कुड नॉट गो बाय एनी चांस।
तो मैंने 2 की डेट लाइक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आपको लेनी होती है passportsewa.com से, तो मैंने 2 की ली, 2 की डेट ही नहीं दिखा रहा था। तब रियलाइज हुआ कि भाई संडे है, सैटरडे है, 3 की डेट संडे है, 4th की ही डेट दिखा रहा था। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी भाई, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि मैं 6th को पासपोर्ट दे दूंगी आपको, आई सेंड द फोटो बाय 6th। मैं 6th को कैसे भेज देती अगर मैं 4th को वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जा रही थी। लाइक आई हैड अपलोडेड माय डिटेल्स एंड एवरीथिंग, आई हैड बुक्ड स्लॉट एंड एवरीथिंग, बट आई डिडंट नो, आई हैड नो आइडिया कि सब वेरीफाई होने में एंड पासपोर्ट हार्ड कॉपी आपके पास बन के आने में कितना टाइम लगता है। तो फर्स्टली और भी काम थे डॉक्यूमेंटेशन के, तो मैं अपना सारा सामान लेके एवरीथिंग लेके आई वेंट टू माय बटालियन सीओ सर के पास। देन डॉक्यूमेंटेशन कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवाई। आई ऑल्सो गॉट अ लेटर प्रिंटेड आउट कि भाई इमरजेंसी केस है एंड आई नीड अ पासपोर्ट अर्जेंटली, वेरी अर्जेंटली, ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस, बिकॉज दिस इज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? आई वाज गोइंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हुआ। उसके बाद 4 को मैं जाती हूँ अपने अपॉइंटमेंट के लिए। 11:30 का आई थिंक टाइम होता है और मैं 10:45 ही पहुँच गई थी और अंदर चली गई थी। तो कोई इशू नहीं होता, बहुत ईजिली सब कुछ स्मूथली हो जाता है। मेरा तत्काल पे होता है, तो वो तुरंत काउंटर से पास होके सब कुछ होके, एंड मैं हर काउंटर पे कहती, सर जल्दी हो जाएगा ना, सर मुझे 2 दिन में चाहिए, सर बहुत इमरजेंसी, सर बहुत इमरजेंसी है। वो कह रहे बेटा हो जाएगा। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे होगा। अब इट हैपेंड बिकॉज आई गॉट अ नोटिस फ्रॉम बटालियन, या इट हैपेंड जस्ट बिकॉज मेरी किस्मत अच्छी थी, आई डू नॉट नो। ऑन द 6th आई गॉट अ मैसेज, 6th of September, कि आपका जो पासपोर्ट है इट हैज रीच्ड द पोस्ट ऑफिस। मैं रुकी ही नहीं, मुझे बटालियन जाना ही था कुछ काम से एंड कुछ सामान लेने भी आई हैड टू गो, तो मैं मम्मी के साथ बाहर जा ही रही थी। मैं रास्ते में ही पोस्ट ऑफिस में रुकी, पोस्ट मास्टर से बात करी, पापा के ही इज लाइक अ नोन ऑफ पापा, तो मैंने पापा से बात करवाई एंड आई टुक माई पासपोर्ट देयर एंड देन। घर तक गया ही नहीं वो, मैंने पोस्ट ऑफिस से जाके ले लिया, डिलीवरी नहीं हुआ। एंड तुरंत मैंने बटालियन जाके सीओ सर को दिखा दिया कि सर पासपोर्ट आ गया है। आई सेंड द फोटोज ओवर मेल वाईपी के डॉक्यूमेंट्स के लिए भी जो भी ज़रूरत था टू द ऑफिसर्स हु वर इन चार्ज, एंड थैंकफुली सब कुछ हो गया। हमें और भी प्रिपरेशंस करनी थी एंड बिकॉज वी आर गोइंग टू अ डिफरेंट कंट्री, हमें कल्चरल परफॉर्मेंस भी करनी थी। तो अपने डायरेक्टरेट्स का एक कुछ ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम लाने को बोला गया। यूपी कथक की ड्रेस लानी थी। 19 बटालियन इज द बटालियन ऑफ लखनऊ ग्रुप, जिसके पास कल्चरल का सारा लाइक यूजुअली 19 बटालियन करवाता है कल्चरल, तो दे हैव कॉस्ट्यूम्स एंड एवरीथिंग। Because when I did RDC, तो हमारा IGC वगैरह everything was conducted by 19 battalion. So I had a very good bond with the GCI ma'am there, Vinita ma'am, and the CO sir also. Everyone knew me. मैंने विनीता मैम से बात करी एंड विनीता मैम ने भी CO सर से बात कर ली। मैंने अपनी CO सर से भी बोल दिया, उन्होंने भी 19 के CO सर से बात कर ली। एंड आई वेंट टू 19 बटालियन ऑन द सेम डे। आई लुक्ड अप इन द स्टोर, आई गॉट अ ड्रेस फॉर मी। मुझे ड्रेस भी मिल गई, एक अनारकली सूट मिला था, काफ़ी आई थिंक 3-4 साल पुराना था वो किसी बैच का, एंड इट वॉज प्रीटी नाइस। फिटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, उसका सेट वेट ले लिया, दुपट्टा वगैरह शायद मैंने अपना यूज़ किया था, बट आई गॉट अ वेरी गुड सूट। मैंने उसे स्टीम आयरन कराया, पैक किया, लेके गई। मेरे पास अटैच ही नहीं थी, तुम ये सोचो भाई। एंड मुझे लार्ज साइज वाली अटैच चाहिए थी बिकॉज आई थॉट कि भाई रशिया जा रहे हैं, एंड वो सब डिटेल्स हमें मिल गई थी कि हमारा जो लाइक अराउंड कैपेसिटी कितनी होगी हमारे बैग्स की, कितनी होनी चाहिए। तो मैंने सोचा एक बड़ी जो लार्ज साइज़ की अटैची होती है वो मैं ले लेती हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड है अनमोल, उससे मैंने अटैची बोरो करी, उससे मैं अटैची लेने गई। उसके बाद अटैची वगैरह ली एंड सब पैकिंग शुरू करी। पैकिंग क्यूब्स मंगाए वैक्यूम वाले, क्योंकि इतना सारा सामान था। मैं डीकैथलॉन गई हूँ और एक जैकेट लेके आई हूँ फॉर माइनस टेम्परेचर्स, बिकॉज रशिया का क्लाइमेट वॉज लाइक बारिश कभी हो जाती है, ठंडा होता है इवन इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। एंड व्हेन वी वेंट देयर, वहाँ पे जैसा यहाँ लखनऊ में और इंडिया में नवंबर दिसंबर में गर्मी होती है, वैसी वहाँ सर्दी होती है, वैसी वहाँ सितंबर में थी एंड कभी बारिश हो जाती थी। तो आई हैड टू बाय अ जैकेट वेरी माइंडफुली। तो मैं डीकैथलॉन गई, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट प्लेस। एंड वहाँ से मैंने एक ऐसा भी जैकेट लिया, अंदर से इट वाज वार्म एंड फरी, बट बाहर से उसका जो मटेरियल था वो रेनकोट वाला था, लाइक इट वाज वाटर रेजिस्टेंस, तो वाटर स्लिप हो जाता था, वो वेट नहीं होता था बाहर से। एंड इसके बाद ऐसी प्रिपरेशंस चलती रही, डॉक्यूमेंटेशन हुआ। पासपोर्ट मेरा सबसे लास्ट में पासपोर्ट गया था इन द ग्रुप एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है। उसके बाद टिकट्स वगैरह हुए एंड 13th of September को आई लेफ्ट फॉर दिल्ली। पहले हम लोग दिल्ली गए, 8 to 10 days हम लोग वहाँ पे रहे एंड 23rd को हम लोग
में इंडिया छोड़ा एंड वी रीच्ड रशिया. सो द नेक्स्ट पार्ट कि फ्लाइट कैसी थी, किस एयरलाइंस के थ्रू गए, एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. एंड हाउ वाज द ट्रिप टू रशिया, my experiences, what I gained from it, everything will be covered in the next part. I think this much is enough of story time for you all. I hope you all enjoyed it, and please comment down below more ideas. What kind of videos should I bring to you? If you are new to the channel, please like, share and subscribe, and comment down below your experience of my channel. Thank you so much. Radhe Radhe.